Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students. But the king did not give him the spade and continued to dig. पर राजा ने नहीं दिया और वो खुद काम कंटिन्यू कर रहे थे. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, I will return home. Here comes someone running, said the hermit. So, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए और अब तो शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड. तो राजा भी क्या थे, जो थक चुके थे, उन्होंने जो फावड़ा था उसको जमीन पे गाड़ा और कहा कि तपस्वी से क्या कहा, आई केम टू यू वाइस मैन, मैं यहाँ पे आया था अपने 3 सवालों के जवाब लेने के लिए. अगर आपके पास भी इनके जवाब नहीं है तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा. तभी तपस्वी ने क्या कहा, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है यहाँ पे. Here comes someone running. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो तभी राजा ने एकदम मुड़ के देखा तो उनके सामने कौन आ रहा था, एक wounded person or beard. First here it is mentioned a bearded man, a man with a beard, जो बड़ी दाढ़ी बढ़ाए हुए था. एक शख्स उनकी तरफ भागते हुए आया और उसका जो हाथ था वो स्टमक, पेट पे उसने दबा रखा था. तो उस दिखा जो खून बह रहा था, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को पेट में दबाए हुए भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था. When he reached the king, he fainted. और जब वो राजा के पास पहुंचा तो क्या हुआ, वो वहाँ जमीन पे गिर गया. The king and the hermit fainted. Fainted here means lost consciousness. बेहोश होकर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. So what happened? तपस्वी और राजा ने जब उसके कपड़े हटा के देखे तो वहाँ पे बहुत बड़ा घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief. Here you can see from the picture how the king is helping the wounded man. He is dressing again. तो वो बार बार क्या कर रहे थे, उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे जब तक खून रुका नहीं. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. So what happened? The king washed and covered it. तो राजा बार बार अपने ही रुमाल से क्या कर रहे थे, उसको बार बार उस घाव को साफ कर रहे थे, बार बार उसको वॉश कर रहे थे. एंड ही वॉज रीड्रेसिंग, बार बार उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे जब तक खून का बहना बंद नहीं हुआ. So at last when the bleeding stopped, the man felt better and asked for something to drink. जब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा. The king brought fresh water and gave it to him. तो राजा जल्दी से गए और उसके लिए पानी लाए, पानी पिलाया. By this time the sun had set and the air was cool. So it was almost an evening time. The sun had set. तो वो शाम हो चुकी थी और जो हवा थी वो बहुत ठंडी चलने लग गई. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. So राजा हर्मिट की मदद से उस जख्मी इंसान को अंदर ले गए और बिस्तर पे लेटाया. The man closed his eyes and lay quiet. So the wounded man, वो अपनी आंखें बंद की और वहाँ चुपचाप लेटा रहा, quiet.
means peaceful, silent. The king, tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. तो राजा भी इतनी दूर चल के आए थे हर्मिट से मिलने के लिए, और हर्मिट का फिर उन्होंने इतना काम भी किया था, तो राजा भी थक चुके थे. जैसे ही वो लेटे वहाँ ज़मीन पे उनको नींद आ गई और वो सो गए. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. So जैसे ही वो जब दूसरे दिन जाग गए थे सुबह, तो देखा उनको थोड़ा पहले समझ में नहीं आया था कि मैं कहाँ हूँ. फिर उनको याद आया कि कल मैं हर्मिट से मिलने, तपस्वी से मिलने आया था. तो उनको सारे वो जो भी हुआ था वो सारी चीज़ें वो एक एक करके याद आ गई. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो जैसे ही राजा ने wounded मैन की तरफ, जख्मी इंसान की तरफ देखा, तो ये देखा कि वो उन्हीं की तरफ देख रहा था और माफ़ी मांगी उसने कि मुझे माफ़ कर दीजिए. Forgive, pardon. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तब राजा ने कहा कि हम दोनों तो एकदम अजनबी है एक दूसरे के लिए, फिर किस बात की माफ़ी तुम मुझसे मांग रहे हो. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. So now the wounded person said, तो उस जख्मी इंसान से राजा से क्या कहा कि आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, आप हमारे दुश्मन हैं. Why? Because मैं यहाँ आया किस लिए था? मैं यहाँ पे आपसे बदला लेने आया था, क्योंकि आपने मेरे जो भाई थे उसकी हत्या की और हमारी जो पूरी जो प्रॉपर्टी थी वो आपने हमसे छीन ली. प्रॉपर्टी दैट इज़ जो भी हमारे पास धन था वो सारा आपने हमसे छीन लिया. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. तो यहाँ पे उस ज़ख्मी इंसान ने क्या कहा कि मैं तो यहाँ आपसे बदला लेने आया था, मुझे पता था कि आप तपस्वी से मिलने आए हैं, इसलिए मैं एक जगह पे छुप के बैठा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा था कि जब भी आप वापस लौट के आओगे उस वक्त मैं आप पे हमला करूँगा. बट जब मैंने देखा आप शाम तक वापस लौट के नहीं आए तो मुझे वहाँ से निकलना पड़ा. तो जैसे ही मैं वहाँ से जहाँ छुपा हुआ था बाहर निकला, जो आपका जो बॉडीगार्ड है उसने मुझ पे हमला कर दिया क्योंकि वो मुझे जानता था. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से तो बच गया, बट मैं मर जाता अगर आप सही वक्त पे मेरा ध्यान नहीं देते, मेरी मरहम पट्टी नहीं देते, मेरा ख्याल नहीं रखते. I wish to kill you and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. So what is he saying? He is asking, forgive me. जो ज़ख्मी इंसान था फिर उसने क्या कहा कि मैं तो आपसे दुश्मनी निभाने आया था पर आपने तो उल्टा मेरी जान बचाई, इसलिए मैं अब अपनी सारी ज़िंदगी आपका सेवक बन के रहूँगा. फेथफुल मीन्स लॉयल एंड ट्रू मीन्स वफादार सेवक बनकर रहूँगा, और मैं अपने जो बच्चे हैं दैट इज़ माई सन जो है उनको भी मैं यही सिखाऊंगा कि आपके सेवक बन के रहे. सो मुझे माफ़ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy. तो राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि जो एक दुश्मन था उसके साथ क्या हो गया, दुश्मनी सारी मिट गई और वो अब दोस्त बन चुके थे. And to have won him over as a friend, he not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give him back the
give back the man his property. So what happened? The king was very happy. तो राजा बहुत खुश हो गए कि जो दुश्मन थे वो अब दोस्त बन चुके हैं, अब उन्हें माफ़ भी कर दिया। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं अपना जो सर्वेंट्स हैं और जो मेरा जो डॉक्टर है उनको भेजूंगा ताकि तुम्हारा आगे का जो ट्रीटमेंट हो मैं उनसे करवाऊंगा, और तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने ली थी, जो भी धन मैंने लिया था, वो सारा मैं वापस तुम्हें दे दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब राजा और जख्मी इंसान पे जो भी वार्तालाप होने के बाद राजा ने कहा कि उसे अब तपस्वी से मिलना। वो बाहर गए, देखा, झोपड़ी के बाहर गए, देखा हर्मिट क्या कर रहे थे। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. अब राजा को यही था कि कैसे भी करके अब जो तपस्वी है मुझे तीनों सवालों के जवाब दे दे जाने से पहले। The hermit was on his knees showing seeds in the beds that had been dug the day before. तो जो वो तपस्वी थे क्या कर रहे थे, एक दिन पहले जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे जमीन पे, अब उनमें क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे। Sowing means plant seed by scattering it on the or in the earth. The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. तो अब उन्होंने last time क्या कहा कि मैं आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे उन 3 सवालों के जवाब बताइए। You have already been answered, said the hermit, still bending down the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? So now, तपस्वी ने क्या कहा, तुम्हें तो पहले ही सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं राजा। That is, राजा उनके सामने खड़ा था, बट राजा को क्या हुआ कि जब सवाल के जवाब दिए ही नहीं तो मुझे जवाब मिले कब? हाउ आई हैव बीन आंसर, मुझे कब मिले जवाब? आप कहना क्या चाहते हो? व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. So now tapasvi, that is the hermit is saying, do you not see? जो तपस्वी है वो अब क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? If you had not, अगर तुमने मुझ पे कल दया भावना नहीं दिखाई होती मेरी कमज़ोरी पे, और तुमने मेरी मदद नहीं की होती गड्ढे खोदने में, तो तुम यहाँ से चले जाते। You would have gone away, then that man would have attacked you. तो वो जो शख्स है तुम पे क्या करता, तुम पे वार कर देता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वहां पे वेट कर रहा था। And you would have been wished you had stayed with me. और तुम उस वक्त शायद यही सोच रहे होंगे कि शायद मैं तपस्वी के पास थोड़े समय रह जाता। So the most important time was when you were digging the bed. So सबसे ज़रूर कल जो था समय वो यही था उस वक्त कि तुमने मेरी मदद की थी। And I was the most important man and to do me good was your most important business. तो उस वक्त तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। सबसे ज़रूरी समय यही था कि तुमने मेरी मदद की थी, और उस वक्त सबसे ज़रूरी काम यही था कि तुमने गड्ढे खोदे थे, और सबसे ज़रूरी इंसान भी उस वक्त मैं ही था तुम्हारे लिए। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब वो जख्मी इंसान भागते हुए तुम्हारे पास आया था, तब वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जख्मी था और तुम उसकी कैरिंग, उसकी देख रेख कर रहे थे। Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो यहाँ पे जो तपस्वी है वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम सही समय पर उसकी देखरेख नहीं करते,
उसकी मरहम पट्टी नहीं करते तो क्या होता, वो शायद मर जाता विदाउट हैविंग, और तुम्हारे साथ कभी वो जो टू एस्टैब्लिश पीस, जो दुश्मनी थी वो ख़त्म नहीं होती। एक्चुअल में जब तुमने उसकी मरहम पट्टी की तो तुम दोनों में क्या हो गया, जो दुश्मनी थी वो मिट गई और तुम एक दूसरे के दोस्त बन चुके हो। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड इट फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। इसलिए उस समय वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी था, शख्स था, और उसकी जो तुमने देख रेख की वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वही था उस समय। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट important time because it is only time we have any power to act. Power, ability to control people or act to do something. तो यहाँ पे जो तपस्वी है वो कह रहा है हमेशा याद रखना, सही समय हमेशा ना तो जो पास्ट जा बीत चुका है वो होता है, ना ही फ्यूचर है जो आने वाला है। सही समय वही होता है जब आप जिस समय पर हो, दैट इज़ नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि सही समय जो अब है वही है जो आपके हाथ में है, और उसी समय पे आप कुछ कर सकते हो, आपको वो पावर होता है उस वक्त पर आप कुछ काम कर सकते हो। तो ना ही वो समय है जो बीत चुका है, ना ही वो समय जो आने वाला है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो हियर जो समय होता है जब जिसके साथ आप होते हो वही सबसे ज़रूरी होता है, वही शख्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी को आपको महत्व देना चाहिए। मोमेंट, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं। तो आपको सिर्फ उस समय पे ध्यान देना है जो चल रहा है, और उसी शख्स पे ध्यान देना है जो जिस वक्त जो आपके साथ है। एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। तो यहाँ पे जो धार्मिक तपस्वी है यही कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी काम वही होता है, उस शख्स के साथ हमेशा अच्छा करो, बिकॉज हमें इस दुनिया में इसी पर्पस, इसी एम के साथ हमको यहाँ भेजा गया है कि हमेशा दूसरों की मदद करे, दूसरों की केयरिंग करे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.